and with one-to-one directly approaching people. जैसे अगर मैं बात करूं कि जैसे हमारे पास ये इंडस्ट्रीज है कार्टी वगैरह, तो उनके अंडर बहुत सारी फर्दर इंडस्ट्रीज या पार्टनर्स आ जाते हैं उनके, तो अगर हम उनकी मेन ऑर्गेनाइजेशन उनको जाके बताएंगे, उनको बुलाएंगे, तो उसके मतलब उससे हमारा और कनेक्शन बिल्ड हो सकता है. Okay, all right. Okay, so we were saying that I needed a sample, one business जिसपे हम ये सारा कुछ करके देखें and then you can fit it into. So I chose genetic because that's what I know best. So I know my business the best. So I can actually fill in the blanks for you. सही है? So what do? We do product engineering. This is not working. We do product engineering, tech talent, AI consultation, case studies. Case studies खैर is another thing. But ये तीन मेन चीज़ें हैं and then obviously और सर्विसेज हैं हमारी, जिसमें हमारे पास जो है वो कुछ सप्लीमेंट्री सर्विसेज हैं, बट ये हमारी तीन मेन है, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, टेक टैलेंट एंड एआई कंसल्टेशन. ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी डू एंड so this is the use case today. Okay, so this is the one that we are going to follow. Now market opportunities पे हम पहले बात करते हैं. market opportunity analysis aka market research कैसे क्या होता है. Before we get into that, you have to be very clear about your purpose. Why are you here? अभी जो मैं आपसे बात कर रही थी ना, तो इसलिए आपसे कहती थी कि I hope that each of you has a USP in mind. ठीक है, कि आपका unique selling point क्या है. As an example, let's take genetic. Why do we do what we do? So we answer three questions: why, what, and how. Number one, why. क्या, and then कैसे, right? And then always remember that आप एक commercial venture चला रहे हो, so you want to bring value, but it has to be tied with revenue, always, right? Everybody here understands that, right? So हमारा why ये है कि we want to produce quality software with a global impact. So the value comes in and the quality software comes in. That's our why. और ये हमने 6 महीने बैठ के ये एक statement निकाला. There were different statements और फिर हमने eventually कहा कि yeah, this is why we are present. We want to build quality software with a global impact. अच्छा, what? Establish a global brand presence and achieve 4x revenue growth in 9 years. हम क्या करना चाहते हैं? हम क्यों करना चाहते हैं? हम क्या करना चाहते हैं? हम 9 साल में 4x रेवेन्यू ग्रोथ करना चाहते हैं. सही है? और उसको करने के लिए हम अपनी ब्रांड को ग्लोबली एक्सपैंड कर रहे हैं, राइट? हम कैसे करेंगे? हाउ डू वी डू दिस? बिकॉज if it's a 9-year plan, it has to be in different layers. So our layers are to grow revenue by 60% in 3 years, revisit the what, revise it, fix it, go back. So 3 साल में हमारा, तो 9 साल से हम 3 साल पे आ गए. 3 साल में हमारा ये टारगेट है कि हम 60% करेंगे. उसमें डिफरेंट चीज़ें हैं. हाउ, दिस इज जस्ट वन स्टेटमेंट. हाउ में पूरा हमारे पास एक वो है, बट यू शुड नो योर वाई, वॉट एंड हाउ is very important. And this is not just you, one person sitting and writing this down. We were 8 people when we wrote this down. Us and our board of directors. We wrote this down. ठीक है, so आपको भी अपना why, what और how पता होना चाहिए अगर आपको actually you want to expand and grow your market. Okay? मार्केट साइज सबसे पहले हम करेंगे. मार्केट साइज पे बात, के मार्केट साइज कैसे कैप्चर करते हैं. अभी मैंने आपको बताया कि टैम पैम सैम सॉम, आई जस्ट कॉल इट दैट, टोटल एड्रेसेबल मार्केट. सबसे पहले when you know why you're here, you clear up with that last slide कि मुझे ये करना है, this is what I want to achieve. That will give you clarity कि मुझे locally कितना करना है, मुझे internationally कितना करना है. सही है? सबसे पहले अपना टोटल एड्रेसेबल मार्केट को देखें, बट डोंट वरी टू मच अबाउट इट. आई फील दैट जब भी मैं स्टार्टअप से बात करती हूँ ना, वो हमेशा टोटल एड्रेसेबल मार्केट को देखते हैं और फिर जब हमें पिच देते हैं तो सबसे पहले टोटल एड्रेसेबल मार्केट टैम लगा देते हैं कि जी ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है. दैट्स नॉट फॉर यू, दैट्स नॉट योर अपॉर्चुनिटी. टेल मी द अचीवेबल मार्केट, जो आप एक्चुअली एड्रेसेबल, आपकी सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट क्या है. आई वांट टू नो दैट, और वो आपको पता होनी चाहिए. ठीक है? What is TAM? The total market demand for a product or service if there was no competition or barrier. Globally क्या, अगर पाकिस्तान आपका मार्केट है
तो फिर आपका टैम अराउंड पाकिस्तान है. अगर ग्लोबल मार्केट है तो फिर योर टैम इज ग्लोबल, राइट? हमारा मार्केट ग्लोबल है. थिंक ऑफ इट एज द बिगेस्ट पाई यू कैन पोटेंशियली सर्व, जस्ट अ होल पाई. सही? एग्जाम्पल, दिस रिप्रेजेंट्स द एंटायर ग्लोबल मार्केट डिमांड फॉर कस्टमर्स. मैं अपनी बात कर रही हूँ जेनेटिक की. फॉर जेनेटिक व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? Entire global market demand for customer software development services across all industries, right? So this is specific to me. You should know this for yourself. सही है? और मैंने इसका number भी निकाला है. So these are hypothetical numbers right now. These are not actual real numbers. But just for an example, जैसे मैंने कहा कि जी मेरा इस वक्त total addressable market for software development in 2024, not even 2023, 2024 is estimated to be approximately $736.96 billion. ये ग्लोबल है, ये टैम है मेरा. आपको अपना पता होना चाहिए. सही है? ओके. Potential addressable market, the portion of TAM that your business can realistically target given market conditions or industry specifics. TAM तो इतना बड़ा है. What is it that you can achieve from this global chunk given कि आपकी जो है मार्केट कंडीशंस कैसी हैं, आप किन किन इंडस्ट्रीज को सर्व कर रहे हैं या किस तरह के लोगों को सर्व कर रहे हैं. ठीक है? थिंक ऑफ इट एज द स्लाइस ऑफ पाई दैट योर सोल्यूशन फिट्स इनटू. दिस माइट बी अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, बट व्हेन वी सी द एग्जांपल, सो पीपल गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन पोटेंशियल एड्रेसेबल मार्केट एंड सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट. बट विल कम टू दैट. अभी हम आते हैं. सो मैंने अगेन जेनेटिक का एग्जाम्पल दिया यहाँ पे. This is the portion of the TAM that aligns with Genetic Solutions' expertise and offerings. For instance, focusing on industries like healthcare, education, e-commerce and logistics where the company has demonstrated proficiency. We serve 4 industries. हमने काफ़ी सालों के बाद ये आइडेंटिफाई किया कि हम 4 इंडस्ट्रीज को अच्छा सर्व करते हैं. सो अब ये जो आपको बता रहा है कि जी पीस ऑफ द पाई, ये मेरे लिए इसकी वजह से है क्योंकि मैं हर इंडस्ट्री को सर्व नहीं करती. अभी मैं डेमोग्राफिक की बात नहीं कर रही, अभी मैं सिर्फ इंडस्ट्रीज की बात कर रही हूँ, ग्लोबली बात कर रही हूँ, इंडस्ट्रीज की बात कर रही हूँ. ठीक है? सो दिस इज व्हाट वी सर्व एंड दिस इज आवर पैम. वो है क्या? कंबाइंड एस्टिमेटेड टैम फॉर सॉफ्टवेयर फॉर कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, summing the lower and the upper estimates across these sectors. The total addressable market ranges from approximately 159 billion to 278.xyz billion. सही है? सो ये मेरा PAM है. This is my potential addressable market that I can target. आप अपना निकाल सकते हैं. At the end of this thing we have a template. और प्लस ये कि this is a lot of research. Just go in and research. You have to be very very clear about your research numbers. Numbers exact होते भी नहीं है. सही है? रेंज होती है, रेंजेस होती हैं. सही है? उसके बाद आता है serviceable addressable market. What is it? The part of the PAM you can serve right now with your current resources, technology and location. आपका जो है वो PAM तो काफ़ी बड़ा है, but इस वक्त आप क्या कर सकते हो? What is it that you have in you? जिसे वो कहते हैं ना, एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत अच्छा टर्म होता है. अगर आपने BMCs बनाए हैं तो वो एक होता है बर्ड इन हैंड, कि आपके पास इस वक्त क्या रिसोर्सेज हैं जिसकी वजह से आप अपना सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट को करते हैं. जेनेटिक के पास क्या रिसोर्सेज हैं अब जाके. दिस इज द सेगमेंट ऑफ PAM द जेनेटिक सॉल्यूशंस कैन एफिशिएंटली serve with its current resources and capabilities. Given the company's operations in Pakistan, Canada and the US, the SAM would include clients within these regions seeking custom software development. So we had a pie, we cut it down industry wise, and then that chunk that we cut down industry wise, we cut it down further region wise. ठीक है? तो हमारे पास एक पतला सा piece of pie आ गया. अब वो क्या है, उसका नंबर क्या है? उसका नंबर ये है, continued estimated TAM for custom software development in North America, summing the lower and the upper estimates across these sectors. The total addressable market ranges from approximately 63 billion to 104 billion. अब ये नंबर आ गया, from 700 to 63 to 104, जिसका एवरेज है 84 billion. So my SAM is 84 billion. Now the interesting part, serviceable obtainable market. For people who are starting off, this is something that you want to achieve in the next year or so. For me, this is what we have achieved this year,
right? So what is it? The realistic portion of SAM that you can capture in the short term considering competition, brand awareness and other practical constraints. Think of it as the bite of a pie you can actually eat, right? तो SAM भी एक पतला piece of pie था, but can I eat the whole thing? I can't. क्यों? क्योंकि मेरे constraints हैं, ठीक है? मेरे पास इस वक्त क्या capacity है, मेरी टीम साइज कितनी है, क्या मैं सारा piece of pie, वो piece of pie खा सकती हूँ? I can't because of this, right? Example क्या है? This is the realistic portion of the SAM that Genetics Solutions has captured, considering factors like competition, brand recognition, and marketing reach. अब because obviously we are into custom software development, मैं आपको बताती हूँ कि 700 बिलियन की मार्केट के लिए इस वक्त दुनिया में 500,000 सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं. So there are approximately 500,000 software companies globally. The average, अगर मैं उस TAM को जो 700 बिलियन का था उसको डिवाइड करूं 500,000 से, तो पर कंपनी को जो रेवेन्यू मिलना चाहिए पर ईयर वो 168,000 मिलना चाहिए. That's it. बहुत कम है, right? But now where do we go? The size of the company, right? 2 people company, 4,000 people company, right? So ये चीज जो है ना, ये आप you can sit down for 2 hours and do this for yourself, right? There is so many AI tools out there and there's so much data out there. Calculations करें बैठ के, आराम से आप उसको निकाल लेंगे. कोई इसमें जो है, this is not rocket science, this is all out there. For your industry you have to find it. This is for my industry, right? अच्छा, अब interesting चीज, अब मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, 2024 में जो मेरा रेवेन्यू हुआ है, सही है, सो उसको डिवाइड करें टैम से, सही है. सो दिस वाज द टोटल, वो नहीं सॉरी, उसको डिवाइड करें सैम से, सही है. सो मेरा जो रेवेन्यू हुआ उसको डिवाइड करें सैम से और देखें. सो आउट ऑफ द सैम विच इज 84 बिलियन एवरेज, उसका अगर हम कोई हिस्सा ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगेन हाइपोथेटिकल नंबर्स, तो वो 0.00178% ले रहे हैं. सो इफ यू आर ए अंडर $2 million कंपनी, you are still 0.00178% of the pie that you are eating, of the piece of the pie that you are eating actually, not even the pie, the piece of the pie, right, that you are eating right now. तो बहुत बड़ा जो है आपके पास, like you have the whole pie, but what do you want to eat? How much do you want to eat, right? Everybody should be focused on what their niche is. I don't want to eat the pie. I don't want to even eat that piece of the pie. I want to go back here. This is what I want. This is what I decided for myself. Given my capacity, given my size, given our expertise, this is what I decided. I said to grow revenue by 60% in 3 years. Establish a global brand presence, achieve 4x revenue growth in 9 years. This is what I want. Because I don't want a 5,000 people company. I'm happy with a 500 people company. Because that's me. You could be different. You could be different, but that's me. So this you have to decide. You have to be very, very clear about this. And आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि आप लोग ये अभी कर सकते हो. Like, and this is a living document by the way. This is a never-ending thing. तो आप आज करोगे, 1 साल के बाद फिर करोगे, 1 साल के बाद फिर करोगे. जैसे मैंने आपसे कहा कि हम अगर 3 महीने में अचीव करते हैं तो हम इसको रिविजिट करेंगे. यार ये अचीव कर लिया तो थोड़ा सा और चैलेंज करते हैं खुद को. You know, let's try to have something else there. So yeah, this is for Jimis. So but that's not something that we've written here. This is just one statement. Like I said, इसके नीचे बहुत कुछ है. This is what we want to achieve as a company. उसके against में हमें क्या करना पड़ेगा? जी, उसके against में हमें क्या करना पड़ेगा is obviously an internal matter, right? But this is what you want. This is us wanting to achieve this, right? तो मैं ये कह रही हूँ कि आपको clarity होनी चाहिए कि आपको क्या करना है, आपको क्या. So this is an example
for genetic only. So we're taking a use case because we have so many different businesses. We're taking one use case. ठीक है? Any questions? Any other questions here? Any other questions here? So genetics projected revenue in 9 years is 6 million. That's it. Very realistic. Very realistic as of today. Right? Maybe we might be able to achieve this in 4 years, 5 years. That's good. Then we can challenge ourselves and make it better. So आपको ये पता होना चाहिए, not today, but in the near future, कि आपकी क्या targets हैं, आपने कहाँ पहुँचना है, उस हिसाब से आपने what portion of the pie do you want to eat, right? Are there any questions here so far? जी. And find out करने के लिए क्या क्या methods हम use कर सकते हैं? आपने कहा AI tools use हो सकते हैं, but इसमें अपने यार ये I want to open this. This is अच्छा, अब मैं क्या करूं? मैं खुद ही आ गई. Where is the slide? Is there a slide here? So I have a template here. ठीक है? आप उसमें formulas भी लिखे हुए हैं. So go through those formulas and वो बहुत straightforward formulas हैं. Download this template and redo those TAM, PAM, SAM के लिए formulas हैं. But उसमें जो numbers है ना, वो आप ही निकालेंगे because industry आपको पता है. मैं तो अपनी industry के हिसाब से निकालूंगी ना. अगर मैं कह रही हूँ कि my pie is say 780 billion, then that's just for custom software development. ठीक है? अगर मैं कह रही हूँ कि मेरा PAM जो है वो say 250 billion है, सही है? So वो custom software development globally for 4 industries. वो नीचे आ गया. फिर मैं कह रही हूँ कि मेरा SAM जो है वो 84 million है, 84 billion है. तो वो custom software development 4 industries for the North American market. और नीचे आ गया. फिर उसके बाद SOM तो मेरा अपना नंबर है जो मेरे पास इस वक्त obtainable है. ठीक है? आपका assumption होगा. For example, मेरा जो है एक influencer है जो lifestyle influencer है. तो उसमें जो है cosmetic brand भी आ सकते हैं, fashion brands भी आ सकते हैं, बहुत बड़ी. ठीक है? तो मैं सबसे पहले first step क्या हो, कहाँ से find out करें और उसको क्या find out करें? कि number कि कितना बड़ा है, ये number आ सकता है. So I'll tell you what I did. I just did. How many of you use AI tools? Everybody, right? Everybody, right? My AI tool I've given my AI tool a name called Byte. So I'm like very friendly with Byte, right? So I tell Byte कि भाई मुझे बताओ. जैसे for example, I can even give you that prompt जो prompts मैंने कल लिखे. मैंने उससे कहा कि जी मुझे ये बताएं कि जो है globally custom software development की market कितनी है, market size क्या है, वो आपको नंबर ला के दे देगा. That for me, that I did for this, but so you have to be a little bit more clear to it, right? But आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा. आप 2-3 अलग-अलग prompts करके उसको पूछेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा. ठीक है कि ये है. But there's also formulas to do that, right? एक ये. फिर उसमें से फिर आप अपना निकालें. आप बताएं कि अच्छा अगर इन इंडस्ट्रीज में, फॉर एग्जांपल फॉर मी, अगर इन इंडस्ट्रीज में करना है तो फिर क्या है. अच्छा अगर इस रीजन में करना है तो फिर क्या है. So it will keep bringing it down and it's pretty straightforward, right? अच्छा ठीक है, सही है. ये टेम्पलेट है, आप लोग उसको डाउनलोड कीजिएगा और maybe try to use it. It's pretty straightforward, but I think that you can get the whole slide deck. वो अगर आप इस पे भी जाएंगे, slide deck का भी लिंक दे देना उनको प्लीज. ठीक है? All right. Okay. Any other question? Did that help? Okay. Any other question, Ji? I'm a little confused between PAM and SAM. PAM and SAM. I told you that was the confusion. So you have a pie and then you have a piece of pie and you further इसको और मज़ीद काट देते हैं आप. Addressable market ठीक है. और SAM भी समझ आ रहा है. PAM It's the same thing. So मैंने अपने लिए क्या myself I said global नहीं सर्विसेज नहीं डिफाइन की. मैंने कहा जी मैंने एक ही सर्विस पकड़ी, कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. ठीक है? मैंने कहा जी दुनिया में कितना काम होता है. ठीक है? अच्छा मैं चूँकि हर इंडस्ट्री को नहीं सर्व करती, ठीक है, तो मेरी इंडस्ट्री जो 4 इंडस्ट्रीज जिसको मैं सर्व करती हूँ उसमें कितना काम होता है दुनिया में. ठीक है? सो वो मुझे उसने पीस ऑफ द पाई दे. मैंने कहा ठीक है, अब ये 4 इंडस्ट्रीज को उठा के नॉर्थ अमेरिका पे अप्लाई करो. मैं सिर्फ पूरी दुनिया में से नॉर्थ अमेरिका में ज़्यादा फोकस्ड हूँ, तो मुझे
वहाँ से कितना काम मिलेगा, उसने मजीद उसको डिवाइड किया, ठीक है। मैंने कहा ठीक है ये, बिकॉज दैट इज़ वेरी क्लोज टू माई टारगेट ऑडियंस। मेरा जितना मार्केटिंग एफर्ट है वो नॉर्थ अमेरिकन मार्केट पे जाता है। आई डोंट डू मिडल ईस्ट, आई डोंट डू यूरोप, आई डोंट डू अदर प्लेसेस, बाकी जगह से ऑर्गेनिकली आता है, बट आई फोकस माई मार्केटिंग एफर्ट्स ऑन नॉर्थ अमेरिका। तो अब वो मेरा बहुत स्पेसिफिक हो गया, सो यू हैव टू सॉर्ट लाइक कट इट डाउन टू दैट, ओके जी। कट डाउन कर रहे हैं तो प्लान नहीं कर रहे हैं, और अगर खुद ही नहीं इंडस्ट्री, आपका कुछ और हो सकता है, मेरे लिए वो पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, एंड देन उसके बाद मैंने उसको रीजन स्पेसिफिक कर दिया, आपका पैरामीटर कुछ भी हो सकता है। व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दिस ना, then you will it will start to make sense, more sense to you, and you will have more and more questions by the way, ठीक है। हाँ थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करेंगे प्लीज़, ठीक है। ये आपके पास एक टेम्पलेट है जो बनाया हुआ है, टैम का फॉर्मूला है, टोटल पॉपुलेशन इन टारगेट मार्केट प्लस एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर। इट्स नॉट दैट सिंपल, बिकॉज आपको एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। पैम उसके बाद नीचे है, TAM into industry specific application factor, again because I was doing this for myself and then I got my AI to generate a template out of it, so this is what it did, right? SAM, PAM into resource feasibility, सही है, geography and expertise, सही है, उसके बाद अपना SOM निकालते हैं। So this is good, इसको देखें, this is very straightforward, otherwise बहुत ज़्यादा help आपको, again just if you are very good at prompt engineering, very good at writing prompts, बहुत अच्छा आपको हेल्प मिल जाता है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट सॉर्ट ऑफ AI यू आर यूजिंग, ठीक है। अगर पेड AI नहीं यूज़ करे होंगे तो थोड़ा मसला हो जाएगा जी। कैन आई कम बैक टू यू? आई विल कम बैक टू यू, क्योंकि आई एम रियली 4:15 बज गए, 4:45 तक मुझे ख़त्म करके 15 मिनट का QA करना है, 15-20 मिनट का, एंड आई कैन कम बैक टू यू, सही है। अच्छा, अब दूसरा सेक्शन है कस्टमर प्रोफाइलिंग एके मार्केट सेगमेंटेशन। बहुत सारे तरीके से आप मार्केट सेगमेंटेशन कर सकते हैं, 7, 8, 9 तरीके हैं, टेम्पलेट के अंदर हैं। आई एम फोकसिंग ऑन 4 राइट नाउ विच आई फील आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नंबर 1, डेमोग्राफिक, divides the market based on statistical data about people, example age, gender, income, education level। हम सबको पता है, सोशल मीडिया पे आप मार्केटिंग करते हैं, आपको पता है, सबसे पहले कहता है कि जी डेमोग्राफिक बताएं, सही है। हमारा यूज केस क्या है? स्मॉल टू मीडियम साइज एंटरप्राइजेस एंड लार्ज कॉरपोरेशंस, ये सो दिस इज आवर डेमोग्राफिक, दिस इज जेनेटिक्स डेमोग्राफिक। बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन हमने ये की हुई है, आपने अपनी सेगमेंटेशन करनी है। देखें, जब आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं या लिंक्डइन पे जाते हैं या कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं या किसी और फॉर्म ऑफ मार्केटिंग करते हैं, PR करते हैं या आप डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं, यू शुड नो हु यू वांट टू मीट। अभी मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ बैठी हुई थी, माय कंटेंट एंड लीड जनरेशन टीम, शी कॉल्ड मी, शी सेड देयर इज दिस कंपनी इन मैक्सिको, they want to meet. I said, why? What do they do? It's a tech company, right? What do they do? They do resource outsourcing. Okay, so I said, no, I don't want to meet them. Why? Because that's what I do. And I know कि Mexico के rates और मेरे rates एक जैसे ही हैं. So what are they going to? They're definitely going to sell to me rather than buying from me. So that saves me time because I'm very, very clear on my market segment कि मैं किसको serve करना चाहती हूँ. So that saves me time. So you can't jump on every other meeting or every other lead that comes your way. You have to be very, very clear कि अच्छा मेरा कितना टाइम खाएगा ये. ऐसा इसका ये मतलब नहीं है कि you have to be very, very sure कि lead convert होगी तो आप जाएं. ऐसा नहीं है. If you are 40-60, go. But if you're not a 40-60, don't go. ठीक है, that's going to be a waste of your time. थोड़ा सा उसका पीछे research कर लें. Whatever meeting that you go into, spend some time learning about that customer. मतलब जब हम छोटे होते थे तो हम 1-1 घंटा लगाते थे कस्टमर को समझने के लिए कि अच्छा मैं किसके साथ मीटिंग में जा रही हूँ. अब हम 5 मिनट लगाते हैं कि यार देख तो लूँ उसका लिंक्डइन एक यूँ जूम करके कि यार ये करता क्या है, ठीक है, या इसकी वेबसाइट देख लूँ करते क्या है, ताकि जब मैं जाऊँ सो आई नो व्हाट टू सेल टू देम, राइट. और कभी कभी ये भी होता है यू आर नॉट सेलिंग, यू आर जस्ट टॉकिंग एंड समथिंग विल कम आउट ऑफ दैट, राइट. अच्छा,
तो ये हमारा यूज केस है, स्मॉल टू मीडियम साइज एंटरप्राइजेज, एसएमईज एंड लार्ज कॉर्पोरेशंस, इंडस्ट्रीज, हेल्थ केयर, एडटेक, फिनटेक, लॉजिस्टिक्स, ई कॉमर्स। डिसीजन मेकर्स डेमोग्राफिक से कौन, मैं किससे बात करूंगी, सीईओज, सीटीओज, आईटी मैनेजर्स एज 30 to 55, क्योंकि 55 साल के बाद उनको समझ नहीं आती कि मैं टेक में क्या क्या बात कर रही हूँ, ठीक है। तो फिर वो यू हैव टू बी केयरफुल, राइट। सो इफ समबडी सेंड्स अ रिस्पॉन्स टू योर ईमेल, और नॉर्मली जब आप ईमेल का रिस्पॉन्ड करते हो तो कैसे करते हैं, मेरी ईमेल आई, उस पर आपने रिप्लाई हिट किया है, तो जवाब कहाँ देंगे, ऊपर या नीचे? अच्छा, आप लोग सारे जीमेल वाले हैं, ओके। आउटलुक में, लेकिन जब आउटलुक में क्या होता है कि व्हेन यू गेट एन ईमेल एंड देन यू व्हेन हिट रिप्लाई यू गेट अ सेक्शन ऑन टॉप, एवरीबडी डज। आप अगर मुझे देंगे भी तो मुझे जवाब ऊपर आना चाहिए। अगर मेरे पास मेरी ईमेल के सिग्नेचर के नीचे रिस्पॉन्स है, मैं देख रही हूँ जवाब किधर है, इधर उसका जवाब किधर है, और मैंने देखा कि जी बिल्कुल सिग्नेचर के नीचे उन्होंने एक लाइन का जवाब दिया हुआ है, वो टेल्स मी दैट दिस गाय इज नॉट टेक सेवी, राइट। फिर मैंने उनसे कहा अच्छा आप टीम्स पे आ जाएं मीटिंग करने के लिए, विच आई यूजुअली डू। वो टीम पे लॉग इन नहीं कर सके, ओके, दैट्स अनदर साइन टेलिंग यू दैट दिस इज गोइंग टू बी ट्रबल, because even if you take the project, it's going to be very, very hard to tell them why you did what you did, right? So you have to make the call. Do I want to? Do I not want to pursue this lead, right? So ये चीज़ें जो है आपको अपना आपका demographic बताता है. This is us. This can be very shrewd, not very nice, but you know I only have so much time in a day. So this is what I can do, right? अच्छा. फिर होता है ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन. डेफिनेशन डिवाइड्स द मार्केट बेस्ड ऑन लोकेशन एंड ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज. एग्जाम्पल कंट्री, रीजन, सिटी, क्लाइमेट. व्हाट इज माय यूज केस अबाउट दिस? ये बहुत इंटरेस्टिंग यूज केस है. तो प्राइमरी मार्केट नॉर्थ अमेरिका, यूएस एंड कनाडा. टेक फॉरवर्ड मार्केट विद हाई डिमांड ऑफ फॉर कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, राइट. सो आई गो कंट्री, रीजन, सिटी एंड क्लाइमेट वाइज, ओके. And then उसके बाद प्राइमरी में मिडल ईस्ट एंड साउथ एशिया. इमर्जिंग मार्केट्स, these are not tech forward, the emerging markets. Seeking cost efficient solutions. So ये मेरा प्राइमरी जो है यूजर है बेस्ड ऑन जोग्राफिक सेगमेंटेशन, राइट. सो मैं डेमोग्राफिक जो है वो और इन दोनों को मिला के अब देखूंगी. मजीद बाइफर्गेशन हो गई. सेकेंडरी मार्केट यूरोप, कंपनीज फोकस्ड ऑन AI ड्रिवन सॉल्यूशंस. पाकिस्तान, लोकल क्लाइंट्स विद स्केलेबल नीड्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. This primarily for me is the corporate sector. I do not work with SMBs in Pakistan, right? So that is what I built for myself. तो आप लोगों को इस तरह की geographical ज़रूर करनी पड़ेगी अगर आप अपना टाइम और अपने पैसे नहीं ज़ाया करना चाहते. This also helps when you do these Google ads. कितने लोग यहाँ से Google ads पे काम करते हैं, spending करते हैं, right? So this is very, very important. Otherwise you lose your money like this, right? Need-based segmentation. This is also very interesting. Like I said, I only did 4 segments based on specific consumer needs or problems they are facing. और ये आप सबको apply कर. This is not just me. All of this applies to all of you. Example: reliability seekers, budget conscious consumers, innovators looking for new trends. क्या मतलब है? Let's look at the examples. Use case genetic. Again, पेन पॉइंट्स उनके होते हैं. लैक ऑफ इन हाउस एक्सपर्टीज इन AI और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. मेरा कस्टमर ऐसा होता है कि उनके पास नहीं होती हैं, ठीक है. हाई डाउन टाइम विद एग्जिस्टिंग सिस्टम्स, सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज इन सॉफ्टवेयर सिस्टम्स. ये इनके पेन पॉइंट्स हैं. हम उनको क्या सोल्यूशन देते हैं? कस्टम सॉफ्टवेयर टेलर्ड टू द यूनिक बिजनेस प्रोसेसेस, स्केलेबल एंड फ्यूचर रेडी प्लेटफॉर्म्स, रिलायबल कॉस्ट इफेक्टिव डेवलपमेंट टीम्स. ये अगेन बेस्ड ऑन नीड बेस्ड सेगमेंटेशन हम इस तरीके से सोल्यूशनिंग करते हैं for that segment of users. You can do that for your own users. I want to make sure that in your heads you're thinking, when I do this, what do I write here? Right? So that's where you should be thinking. Each slide should make you think कि अच्छा अगर मैं ये करता हूँ, and this is very, very straightforward. अगर आप अभी मेरी बातें सुन रहे होंगे तो आपको लग रहा है ये तो मैं पहले पता है, ये तो हम करते ही हैं, हमें पता ही है. But if you put it down, that is where when you come to this, right? So you have to put it down. Behavioral segmentation. Definition: categorizes consumers based on behavior, action or usage. Example: purchase behavior, right? कि कितना frequently, कितना occasionally वापस आता है. सही है. अभी जो आप लोग upselling की बात कर रहे थे, सही है. Usage rate: light, medium, heavy user.
brand loyalty keeps coming back to you. Benefit sorts, convenience, quality, price, discount, ठीक है. Use case genetic, businesses requiring ongoing development and maintenance. User behavior क्या है? Businesses requiring ongoing development. This is true for us. This is very very true to us. This is all of these 4 segmentations are very very true to us. हम यही करते हैं. So this is like 100% accurate data, except for the numbers by the way. Accurate data. सही है? Clients interested in agile methodology and quick delivery cycles. Companies seeking cost-effective customization and post-deployment support. ये हमारा user behavior है. जो user ये ढूंढ रहा होता है, हम उसको जो है वो solutions देते हैं. Purchase behavior क्या है? High value contracts with recurring service model. Recurring is your keyword here. Okay, recurring is your keyword here. Clients who prioritize quality over price but appreciate competitive rates. अच्छा, now this in one sentence is us. हमारे rates सस्ते नहीं हैं. Compared to Pakistan, India market, we are not cheap. But then we are not looking for that kind of customer. So हमारे पास वो आएगा जो जिसका behavior ये होगा कि जो prioritize करता है quality over price but appreciates competitive rate. This is me. You can be different. You can play on price. You can play on quantity. I do not play on quantity. I play on quality. मेरा एक बहुत ही niche audience है. अभी किसी ने कहा था ना कि जो है वो I don't know, somebody said that, you know, how do I identify my SAM, right? So उसमें this is what helps you to identify your SOM actually. जब आपके पास SAM आ जाता है तो फिर आप यहाँ से SOM को identify करते हैं कि मैं क्या करना चाहिए. Who am I as a person? People ask me, you've been around for 18 years, why don't you have 1,500 people company? I said, that's not the kind of person that I am, because I don't play on quantity, I play on quality. I want a 500 people company and that's all I want. And because then I can charge the rate that I want for the quality software that we deliver, because not everybody pays that rate. So I don't want a big size company. I want a smaller company that charges high and gives quality. That's it. And I pay my employees उस तरीके से कि जिस तरीके का वो काम करते हैं. So it's you. When you start writing this down, you also try to you also sort of like understand who you are as a person or as a company, right? As an entity, who you are. इसका template भी यहाँ पे है. Again, can somebody please? So while they are doing that, any other questions here? Are there any questions? No questions? You are explaining it very well. Achha. Yeah, that's one way to put it. Anybody has any questions? So keeping your business model in mind, you should ask questions keeping your business in mind, right? Not keeping, even in the end when you ask questions, keep that. से कि अच्छा अगर मैं इसको अपने बिजनेस पे लागू अप्लाई करता हूँ तो ये प्रॉब्लम मुझे नज़र आती है. देन वी कैन टॉक अबाउट इट एंड वी कैन ओपन द फोरम फॉर अदर्स टू टॉक एज वेल, राइट? सो थिंक ऑफ इट दैट वे. ओके, सो थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे. सो आपके पास इसी का मैंने टेम्पलेट बनाया है. सेगमेंट नेम बताया, डिस्क्रिप्शन बताएं, ओवरव्यू ऑफ द सेगमेंट, हु आर दे, व्हाट मेक्स देम यूनिक, एंड देन डेमोग्राफिक फिल आउट करें, जियोग्राफिक फिल आउट करें, साइकोग्राफिक भी देयर वाज वन, बिहेवियरल हमने बात की, नीड्स एंड पेन पॉइंट्स, टेक्नोलॉजी यूजेज, बाइंग प्रेफरेंसेस, ये भी हमने बात की, फाइनेंशियल इंडिकेटर्स. नाउ दिस इज फाइनेंशियल इंडिकेटर्स निकालने थोड़े से मुश्किल होते हैं, बट यू नो इफ़ यू आर यूजिंग, अभी हम बात करेंगे डिफरेंट टूल्स की भी. इफ़ यू यूजिंग टूल्स लाइक लिंक्डइन नेविगेटर और क्रंचबेस वगैरह तो फिर आप ये निकाल सकते हैं, ठीक है. सो यू नीड टू लर्न the names of these tools, at least एक कीवर्ड लेके जाएं, फिर उसको जब सर्च करेंगे तो आपको 3 और मिल जाएंगे वहाँ से, राइट? बस ठीक है, सही है. सो दिस इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द सेम स्लाइड. इट्स ऑल्सो डाउनलोडेबल. यू कैन यूज इट, यू कैन टेक इट एंड यूज इट. ठीक है जी, बंद कर दें. गो बैक टू द नेक्स्ट वन. ओके, थैंक यू. ओके, दिस इज द लास्ट सेगमेंट. सो नॉट अ लॉट, राइट? कंपैटिटिव एनालिसिस फ्रेमवर्क. Identify your competitor. हमेशा competitor, there was another type of competitor here, I removed that. For you,
आपको कंपैटिटर दो किस्म का होगा, एक डायरेक्ट होगा, एक इनडायरेक्ट होगा. व्हाट इज अ डायरेक्ट कंपैटिटर फॉर मी? अदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज ऑफरिंग सिमिलर सर्विसेज सच एज कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वेयर. कितनी है? अ डाइम अ डजन, राइट? तो जो काम आप लोग करेंगे हो सकता है वो बहुत यूनिक हो सकता है वो डाइम अ डजन हो, राइट? बट यू शुड नो हु योर कंपटीशन इज. इनडायरेक्ट today is platforms offering off-the-shelf software or automation tools that replace custom software development, right? AI based आजकल बहुत आ गए, सही है. Target market, focus on competitors serving healthcare, logistics, edtech, fintech, e-commerce industries in North American. So ये जब है तो अब मैं कहती हूँ कि जी मुझे इस पे फोकस करना है. So मेरा डायरेक्ट कंपैटिटर पूरी दुनिया में फैला हुआ, बट मैं I am focusing on this, and we'll learn more about this why. अच्छा, gather competitor data. Key competitors to study. मेरे लिए क्या है? Medium to large scale IT service providers in my region. Doesn't say in the US. It says in my region. Doesn't say small to medium. It says medium to large, right? Because जो small to medium है वो तो मेरे जितना ही है ना. What's the use having a competitor who's my size, right? तो मुझे तो वो competitor चाहिए जो मुझसे बड़ा हो. मैं देखूँ वो क्या कर रहा है जो मैं कर सकती हूँ, right? जैसे ये साहब यहाँ बैठे हुए हैं, ये देख रहे हैं मैं क्या कर रही हूँ तो जो ये कर सकते हैं, ठीक है? So no, that's life, right? So that's how you learn, right? So the reason that I'm pulling his leg is because he's also my mentee, and we have this relationship. So मैं क्या करती हूँ, मैं बड़ी साइज की कंपनीज देखती हूँ जिनके 1000, 1200, 1500 लोगों की कंपनी हो. मैं उसको देखती हूँ, ये क्या कर रहा है इसे, उसको देखो. नहीं, मेरे बराबर बैठा हुआ क्या कर रहा है, आई डोंट केयर वो क्या कर रहा है, आई केयर अबाउट दैट. सो दैट्स इंपॉर्टेंट. और मेरे रीजन में, बिकॉज इसने भी यहीं से बेचना है, मैंने भी यहीं से बेचना है. मैं जाके अभी इस वक्त टुडे आई एम नॉट गोइंग टू गो टू इंडिया और बांग्लादेश टू सी व्हाट दे आर डूइंग. आई एम गोइंग टू सी व्हाट पाकिस्तानी कंपनी इज डूइंग that is bigger than me, because whoever is coming to me knows that I am in Pakistan, that my back office is in Pakistan. Front office में दुनिया में कहीं पर भी हो, ग्रीस में हो, US में हो, कनाडा, बैक ऑफिस पाकिस्तान में ही है भाई, ठीक है? So they know that, right? So how do I bring them still to me and not to them? For that I need to look at that competition जो मुझसे बड़ा है वो यहीं बैठा है, not at somebody who's in India. So you have to be very very clear about your competition, कि आप किसको देख रहे हो, कौन आपको competitor है. You have to be clear in your head. So right now when I'm saying this in your head, you should be cutting off, oh ये competition है ही नहीं मेरा, ये competition है ही नहीं मेरा. If somebody is selling hijab in India is not my competition, right? If somebody is selling hijab in Bangladesh or America is not my competition. यहाँ पे कौन है, वो मेरा competition है, right? Niche players specializing in AI driven solution or industries genetic serves. ऐसे कौन से players हैं जो AI driven solutions दे रहे हैं which are faster उन इंडस्ट्रीज में जो मैं सर्व करती हूँ. सो दैट्स ऑल्सो माई कॉम्पिटिशन, राइट? सो आई हैव टू कीप एन आई ऑन देम, व्हाट आर दे डूइंग. टूल्स फॉर रिसर्च बहुत सारे हैं, मैं अभी आपको कुछ बता देती हूँ. लिंक्डइन टू असेस कंपैटिटर एम्प्लॉय काउंट. आई यूज लिंक्डइन लाइक व्हाट, लाइक कॉफी एवरी डे. ओके, सो लिंक्डइन, लिंक नेविगेटर आर माई कॉफी. सो दैट्स द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म दैट पीपल लाइक अस यूज, राइट? क्रंच बेस यूज़ करें, फंडिंग, ग्रोथ मैट्रिक्स, कंपनी बैकग्राउंड जानने के लिए. इसी के लिए लिंक्डइन नेविगेटर भी यूज़ कर सकते हैं. वेरी गुड पेड टूल, इट्स रियली गुड. सेमरश यूज़ करें, ऑनलाइन विजिबिलिटी, एसईओ परफॉर्मेंस. माय एसईओ टीम यूजेस दिस टू टेल अस कि हमारी अपनी एसईओ विजिबिलिटी क्या है वेबसाइट की. उसको भी उसका एक फ्री वर्जन आता है, एक उसका पेड. इट्स नॉट रॉकेट साइंस, देयर आर सो मेनी यूट्यूब वीडियोज़ टू हेल्प यू लर्न दैट. सीखें, देखें कि आपके कंपैटिटर डालें, देखें कि अच्छा कितनी लिंक बिल्डिंग की हुई है, कहाँ कहाँ की हुई है, कौन से कीवर्ड्स पे ऊपर आ रहे हैं. कोशिश करें उसको बीट करने की, ठीक है? कंपैटिटर वेबसाइट्स, आई थिंक वी आल्सो कटिंग समथिंग हियर, बट उसमें आगे क्या लिखा मुझे याद नहीं आ रहा. कंपैटिटर वेबसाइट्स टू अंडरस्टैंड सर्विसेज, प्राइसिंग एंड क्लाइंट. उनकी अपनी वेबसाइट्स को देखना भी बहुत ज़रूरी है. एवरी क्वार्टर जो आपका कंपैटिटर है उसकी वेबसाइट देखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है? और उसके बाद ऑब्वियसली सोशल मीडिया, दिस प्रॉब्ली समथिंग रिटन हियर दैट बिकॉज आई wrote down each word that I wanted to say here. So I'm not sure what this is, but
या मे बी ये पता लग सकता है ये नीचे वाला, आई थिंक इट्स कटिंग ऑफ, नहीं आ रहा, उसमें भी नहीं आ रहा होगा, फिर उधर भी कटा हुआ, थोड़ा सा बड़ा करो, हाँ उसको थोड़ा सा छोटा करो, हाँ थोड़ा सा, इज इट कमिंग इन द नेक्स्ट स्लाइड दो, इसको थोड़ा ऊपर कर देना यहाँ से, हाँ ऊपर ले जाएं, ओके ठीक है। सोशल मीडिया टू इवैल्यूएट एंगेजमेंट, उनका सोशल मीडिया देखें, अपने कंपैटिटर का सोशल मीडिया देखेंगे वो किस तरीके से उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। एनालाइज कंपैटिटर्स अक्रॉस की एरियाज, मार्केट पोजिशनिंग, व्हाट इंडस्ट्रीज एंड मार्केट आर दे टारगेटिंग, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी। देखें ऐसे वक्त आप ठीक होते हैं मैं फ़लाँ मार्केट कर लूँ, मैं फ़लाँ, आप ये देखें कि हिजाब है, अब हिजाब की 3-4 शॉप्स हैं, सही है, 3-4 ऑनलाइन पाकिस्तानी शॉप्स हैं, आई होप यू नो दैट, who's hijab, your hijab, somebody, one of you is doing hijab, right, you guys, right, you know that, right, so अब आपका competitor क्या market positioning कर रहा है आपको ही देखने की ज़रूरत है, right, so what industries and markets are they targeting, how are they positioning themselves, example cost effectiveness, innovation, industry specialist, service and offerings क्या है, what services overlap with your services, for example genetic services, Scrum Agile delivery, AI integration, are there the overlaps, any unique offerings, example blockchain or IoT that genetic doesn't currently provide, जो आपका competitor दे रहा है लेकिन आप नहीं दे रहे, it's very very important to know that. Pricing strategy, do competitors follow value based pricing, fixed contract or time and this is very specific to me कि हमारे पास 3 मॉडल्स हैं, अब मुझे ये देखना है कि मेरा कंपैटिटर जो है वो ज़्यादा क्या फॉलो कर रहा है, आप लोग ये देखें कि आपका कंपैटिटर ज़्यादा क्या चीज़ को फॉलो कर रहा है, आर दे फॉलोइंग अ स्पेसिफिक प्राइसिंग पैटर्न, आर दे फॉलोइंग मोस्टली डिस्काउंट्स, यू हैव टू सॉर्ट ऑफ लाइक get into your competitor's shoes is what I mean, you know, yeah, पता नहीं अगले वाले में आ जाएगा, मेरे ख्याल अगले वाले में आएगा, if you go, नहीं वो अगले वाले में आएगा, it's okay, अगले वाले में आ जाएगा, या go back, ठीक है। Compare average project cost or subscription fees, again, pricing strategy अपने competitor की देखें, अपनी pricing strategy से compare करें, फिर अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को अगर रिवाइज करना है, अगर नहीं करना है, यू फील नो आई एम मच बेटर, आई एम डूइंग बेटर देन देम, जस्ट लीव इट इफ यू थिंक यू आर डूइंग बेटर, बट इट्स वेरी गुड टू यू नो मीट पीपल, आई डोंट नो हाउ मच ऑफ यू गाइज डू नेटवर्किंग, इट्स वेरी गुड टू गो इनटू योर इंडस्ट्रीज एंड मीट पीपल एंड जस्ट चिट चैट करें, आपको जो है, एंड डोंट हाइड अ लॉट, बहुत ज़्यादा दफ़ा हम कहते हैं मैं बताऊँगा ही नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, नो, a lot, 70% of the time I have fixed my model because I have shared what I do with somebody and then heard what they do and then okay, उसको कुछ नहीं कहना, हाँ ठीक है, pick that one keyword up, come back home, revise, go through, बहुत फ़ायदा होता है when you talk to people in your network, you learn and you also give value, right? You give value to get value. इनको लगता है मैंने इनको पढ़ा है, इनको पता ही नहीं मैंने इनसे कितना सीखा है, right? So you give value to get value, right? So बहुत ज़रूरी है कि आप ये करें, हमारी तकरीबन ये सारी चीज़ें, half of these are through networking, half of these. Before 2016, my company was still, you know, a 30-40 people company. 2016, I did a diploma in entrepreneurship. और and then वहाँ से you know I understood the value of networking, right, and then everything just changed for me and I understood जी। इस चीज़ में हम लोग काफ़ी अच्छे चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, परसों हमारे कंपटीटर बता रहे कि आपकी प्रोडक्शन हमें ऑफर कर रही है, आपका नाम ले, तो हमारा जो हिजाब का मेन पर्पज़ है कि पाकिस्तान में उस लेवल पर हो रहा नहीं है, तो हमें प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है, तो हम काफ़ी कोलैबोरेटेड करना चाह रहे हैं। बिल्कुल कोलैबोरेशन में चल रहे हैं आप लोग, that's really good collaborations where you can sort collaborations, you know, competition where you can sort, where you think there is not going to be any collaboration, you can compete. So yeah, there's another, I'll come to that. Okay जी, इसी में number what is the next one, client base and portfolio, we are analyzing competitions
across key areas. So next key area is client base and portfolio. Analyze case studies of your competitor. हम लोग very actively अपने competition की case studies को analyze करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं. Because case study में आप अपने customer के लिए सब कुछ लिखते हैं कि हम ये problem आया था, इस प्रॉब्लम को हमने ऐसे देखा, ऐसे एड्रेस किया, ये टूल किट यूज़ किया, ये सोल्यूशन बनाया और अब हमारे कस्टमर को इतना फ़ायदा हो रहा है. केस स्टडीज़ यही होती है ना भाई, हम उसको हमेशा देखते हैं. सो अगर आपके कॉम्पिटिटर की केस स्टडीज़ हैं तो उसको ज़रूर देखें, उनका पोर्टफोलियो देखें. ऑब्वियसली आप सर्विसेज में हैं या अगर आप प्रोडक्ट्स में तो केस स्टडीज़ नहीं होंगी, पोर्टफोलियो तो ज़रूर होगा कहीं ना कहीं प्रिंटेड फॉर्म में या हमारा ऑनलाइन होता है. ठीक है. So analyze case studies to understand the scale of the competition and complexity of their work. Identify shared clients or industries. कभी कभी आप जब उनकी case studies देख रहे होते हैं तो आपको क्लिक कर जाता है यार मैं तो इस इंडस्ट्री को टैप ही नहीं कर रहा, ये वाली भी इंडस्ट्रीज को टैप करना चाहिए. So it's very good to read, right? Marketing and brand, that's the next one, that key area. चैनल्स दैट दे एक्टिवली यूजिंग, वो क्या चैनल्स यूज़ कर रहे हैं, लिंक्डइन यूज़ कर रहे हैं, ब्लॉग्स यूज़ कर रहे हैं, पीपीसी कर रहे हैं. एंड देन अगेन योर कंपटीशन इज़ नॉट योर साइज, योर कंपटीशन इज़ मच बिगर देन यू. तो आप ये देखें कि अच्छा वो कौन सा चैनल यूज़ करे, व्हाट एम आई मिसिंग आउट, आई शुड डू दैट, राइट. हाउ डू दे कम्युनिकेट देयर वैल्यू प्रपोजिशन, वो अपना यूएसपी कैसे बताते हैं. क्लाइंट्स को क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स डालते हैं, क्लाइंट वीडियोज़ डालते हैं, सर्टिफिकेशंस बताई हुई हैं, सही है, कोई एक्रेडिटेशंस हैं, कोई कोलैबोरेशंस हैं, सही, वो उन्होंने अपनी वेबसाइट डाली हुई, तो आप उसको देखें, आप उसको फॉलो करें. 18 years into it, I do this every week, right? और अभी मैं हर वीक कैसे करती हूँ उसकी भी रीज़न है कि अगर इतना सारा कॉम्पिटिशन में किस को देखेंगे आप, राइट. नेक्स्ट वन इज कस्टमर रिव्यू एंड फीडबैक. Research reviews on Clutch, Google and other B2B. This is so important. Glassdoor का किसी को पता है, right? मुझे बहुत बुरा लगता है, ठीक है. But the reviews are really good, right? So you should go and read reviews there and say कि अच्छा मेरे competitor के क्या reviews हैं और इतने अच्छे क्यों हैं, मेरे क्यों नहीं अच्छे. What can I do to make it better? Google reviews, B2B platform reviews, Clutch reviews, उसके जाके देखें और देखें वो क्या काम कर रहे हैं, ठीक है. Learn from that, get inspired. Look for recurring praises or complaints to identify gap. Now this is a very important point, right? आप जब रिव्यूज़ देख रहे हैं तो उसमें कंप्लेंट्स भी हों. गूगल पे तो रियल रिव्यूज़ ही आते हैं ना भाई, क्लच पे भी रियल रिव्यूज़ आते हैं. आप कुछ ग्लासडोर चले जाएं, कुछ नहीं कर सकते आप, उसको रियल रिव्यूज़ आते हैं, ठीक है. आप देखें और देखें कौन सा गैप है जो वो फिल नहीं करे, जो इसको आप फिल कर सकते हैं. सो दैट देयर इज़ योर opportunity. This is the opportunity, right? Technological edges. Analyze their tech stack and innovation focus. Example AI, cloud, DevOps. This is for us, right? उनका जो है वो देखें कि किन टेक स्टैक्स पे काम करें. हम देखते हैं कि जिस पे हम नहीं कर रहे, maybe the world is moving towards that. We are not. Number 2, assess they are investing in emerging technologies. Genetic may not be leveraging on right now. So for you to see what is next for them. So I'll give you an example, right? Not even competition but customers. हमारा ना एक बहुत बड़ा, just a couple of weeks ago I noticed a trend. हमारे पास ना एक डिपार्टमेंट है 15 लोगों का जो सिर्फ वर्डप्रेस डेवलपमेंट करता है, ठीक है, और वर्डप्रेस का बहुत काम आता है हमारे पास, सही है. हमने देखा कि हमारे पास महीने की 8-10 वेबसाइट्स वर्डप्रेस की आ जाती हैं, वो काम कर रहे होते हैं. हमने देखा कि यार बीच में आया, उसने कहा जी नहीं वर्डप्रेस से स्विच करना है, वर्डप्रेस से स्विच करना है, कहाँ करना है, विक्स पे स्विच करना है, कहाँ करना है, वेबफ्लो पे स्विच करना है. ऐसे हमारे पास एक महीने में 2-3 आए, एंड आई वाज लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन, बिकॉज वर्डप्रेस इज द CMS दैट पीपल वांट टू गो टू. व्हाट्स गोइंग ऑन? सो देन दैट शुड रेज एन आईब्रो एंड से क्या यार क्या हो रही है, राइट. गो बैक, डू योर रिसर्च. तो हमने एक सर्वे चलाया, राइट, हमने सर्वे चलाया ये देखने के लिए कि वर्डप्रेस वर्सेस विक्स वर्सेस Webflow, right? And then we got a lot of feedback which made us understand that people still love WordPress. 90% of people loved WordPress. 2% said Wix, but there's this 8% which is growing that is saying Webflow is technically more sound, better, has a better structure, has a better technology. So people are slowly and swiftly moving from WordPress towards Webflow.
You have to do that. So for anybody who's saying कि मेरी बहुत अच्छी सेल्स हो रही है, बहुत अच्छी सेल्स हो रही है, आप ये देखें अगर आपकी प्रोडक्ट है, अगर आपकी टेंजिबल प्रोडक्ट है, तो आप कह रहे हैं कि 5 रखी हुई है, ये बहुत अच्छी सेल हो रही है, तो बी हैप्पी, बट दैट शुड ऑल्सो रेज एन आईब्रो, बाकी 4 क्यों नहीं हो रही? जस्ट डोंट बी हैप्पी कि बस हाँ कंटेंट हो गया भाई, एक तो हो रही ना यार, नहीं, बाकी 4 क्यों नहीं हो रही है? Do that research, go and see why that is happening, what is happening, right? हमारे यहाँ ना हमारा जो अवाम है ना वो बहुत हमारा ईगो भी बहुत बड़ा होता है. कोई आके हमसे कह दे ना कि यार हाँ अच्छा था लेकिन ये मसला था, तो हम कहते हैं इसको तो अगली बार बेचना ही नहीं है. So you need to, I'm not saying everybody does that, but we are very very poor on marketing as a country. I'm sorry to say, even tech sector भी इतना ही बुरा है, बल्कि ज़्यादा ही बुरा होगा on selling, right? तो वी वेरी बैड ऑन मार्केटिंग बिकॉज वी हैव वेरी वेरी बिग ह्यूज ईगोज. जब कोई आके हमसे कहता है ना कि ये ऐसे नहीं ऐसे, हम डिफेंसिव हो जाते हैं फ़ौरन से. हम कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ था, ये ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, ये आपने ये कहा था, हमने ये कहा था, आपने ये कहा था, एंड यू लॉस्ट इट, राइट? सो रादर देन बीइंग डिफेंसिव, इफ समबडी कम्स एंड गिव्स यू अ फीडबैक, टेक इट एंड डाइसेक्ट इट. हो सकता है उसमें 90% नॉइस होगा, बट उसमें वो 10% होगा जो आपको चाहिए होगा, जो आपसे कहेगा ओह yeah, this is my fault, I need to fix this. Okay? अच्छा, टेक्नोलॉजिकल एज की बात हो गई. Okay, so now this is a little bit of lengthy stuff, but एक और चीज इससे पहले. Okay, so a good number of competition if you are small and medium business is 3 to 5. उससे ज़्यादा नहीं करें भाई, 3 उठाएं, 3 मेन कॉम्पिटिशन्स उठाएं, स्मॉल बिजनेसेस. 3 इज मैक्स फॉर यू, फॉर मी 5 to 8, फॉर यू 3 to 5. गुड, 3 उठाएं, ठीक है. अब जब आप कोई मैं सारे काम किए ना आपको अब आसान लगेंगे, वरना तो बहुत बड़ी लिस्ट ऑफ कॉम्पिटिशन होती है ना. आप अपने कॉम्पिटिटर्स आइडेंटिफाई करें, 3 को उठाएं. नाउ गोइंग बैक, कंडक्ट अ स्वॉट एनालिसिस. स्वॉट एनालिसिस हमें पता है क्या होता है सबको, राइट? मोस्ट ऑफ अस नो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, राइट? तो अपना स्वॉट एनालिसिस नहीं करना है, अपने 3 कॉम्पिटिटर्स का करना है. इट्स लिटिल डिफरेंट, यू नो, टर्निंग द टेबल्स टुवर्ड्स देम, ठीक है? उनकी स्ट्रेंथ क्या है, वेयर कॉम्पिटिटर्स एक्सेल, स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग, वाइडर जोग्राफिकल रीजन, आई डोंट नो, व्हाटएवर, राइट? जो भी है. नंबर 2, उनकी वीकनेस क्या है, गैप्स दैट जेनेटिक कैन एक्सप्लॉइट, दैट योर कंपनी कैन एक्सप्लॉइट, रिप्लेस जेनेटिक विद यू, दैट यू कैन एक्सप्लॉइट. लैक ऑफ पर्सनलाइजेशन, स्लो डिलीवरी, जो भी है वो आपको कैसे पता लगेगा? अभी हमने बहुत सारी बातें की, कस्टमर कमेंट्स से, फीडबैक से, हर जगह से. अपॉर्चुनिटीज, अनटैप्ड मार्केट्स और सर्विसेज वेयर कॉम्पिटिटर्स आर अंडर परफॉर्मिंग. आपकी अपॉर्चुनिटी है ये, उनकी नहीं है, ये आपकी अपॉर्चुनिटी है. अनटैप्ड मार्केट और सर्विसेज वेयर द कॉम्पिटिटर इज अंडर परफॉर्मिंग, ये आपकी अपॉर्चुनिटी है. थ्रेट क्या है, हाउ कॉम्पिटिटर स्ट्रेंथ कुड पोज अ रिस्क टू यू. सो ये उल्टा हो गया ना, उसके कौन सी स्ट्रेंथ्स हैं दैट कुड पोज अ रिस्क. सो फॉर मी राइट नाउ टुडे इफ यू आस्क मी, एआई एक्सपर्टीज, एग्रेसिव प्राइसिंग. एग्रेसिव प्राइसिंग तो हमेशा से रहा है कि हम यू आर वेरी हाई प्राइस एंड दे आर वेरी लो प्राइस. सो वो कहते हैं यार आप इतने ले रहे हो, फला इतने ले रहे हैं, वी डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन प्राइसिंग. तो वो जूम करके वहाँ चला जाता है, राइट? बट डू आई वॉन्ट टू कॉम्प्रोमाइज? दैट्स योर कॉल. डू यू वॉन्ट टू कॉम्प्रोमाइज? राइट, दैट्स योर कॉल. दूसरा, एआई एक्सपर्टीज, ये हमारे लिए. Evaluate key differentiators. What makes genetic your company stand out? Focus on हमें हमारे लिए ये है कि you need to write your, so based on these different SWOT analysis, आप ये identify करें कि what makes you stand out. What do you need to focus on? We need to focus on Scrum Agile methodology, delivery cost effective compared to the North American market, strong client relationships in industries like healthcare, commitment to quality through personalized solutions. ये हमारी focuses हैं. Based on the SWOT analysis and understanding competitors, हमने ये निकाला कि हमारा focus होना चाहिए. आपको ये निकालना है आपका focus क्या होना चाहिए, ठीक है? Based on all of this data, present insights and actionable strategies. Market positioning adjustment, highlight industries where competitors are weak or absent. कैसे पता लगा? जब आपने सारा डेटा कलेक्ट किया तो आप ये इंसाइट निकाल सकते हैं वहाँ से कि जी
वो इंडस्ट्रीज हाईलाइट करें जहाँ पे आपको कंपैटिटर वीक है या है ही नहीं सिरे से, राइट? सो फॉर एग्जांपल, okay, so I'm going to make a little bit of switch from genetic to Consulnet. Okay, so Consulnet में हमने क्या किया, genetic का मुझे भी जहन में नहीं आ रहा, पर Consulnet में हमने क्या किया कि कराची में हमारे पास, चलें going back to genetic, okay, forget Consulnet. कराची में हमारे पास, so we have offices in 3 cities right now, actually 4, but let's talk about 3 cities, right? So main primary city is Karachi. आपको पता है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद are the main cities, right? For even for tech. अब हो ये रहा था कि जिस तरह का हमें रिसोर्स चाहिए वो हमें यहाँ पे बहुत महंगा मिल रहा था या बहुत ज़्यादा जंप्स कर रहा था. सो व्हाट वी डिड इज़ वी वेंट टू अ सिटी विच इज़ क्लोज बाय, डजंट हैव अ लॉट ऑफ कंपटीशन, एंड वी ओपन एन ऑफिस देयर, राइट? अब वहाँ पे लोगों के पास, उनको वो कराची से 2-2.5 घंटे दूर हैं, उनको अपॉर्चुनिटी के लिए कराची आना पड़ता है. हम वहाँ जब चले गए, सो वी वर ट्रेल ब्लेजर्स, वी वर द फर्स्ट वंस, और हमने 15 लोगों की टीम बिठा दी. सस्ते भी हैं, ठीक है, एफिशिएंट भी हैं, वहाँ पे जॉब मार्केट भी बहुत हल्की थी, फ़ौरन से बैठ गए. वी सेड ओके दिस वर्क, 2 years इट सेटल्ड. 2 साल में तो वो वाला ब्रांच सही हो गई. इस दफ़ा हमने क्या किया, ओके लेट्स गो इवन फर्दर, वी वेंट टू स्कर्दू, वी सेड ओके अब यहाँ खोलेंगे. वहाँ पे बिल्कुल मार्केट नहीं थी, लोग बहुत थे, मार्केट नहीं थी. क्यों लोग बहुत थे? यू हैव टू डू योर रिसर्च, राइट? क्यों लोग बहुत थे? लोग कैसे आए? जब कोविड आया था तो लोग अपने घर चले गए थे. इस्लामाबाद में बहुत सारे लोग जीबी से आते हैं, बहुत सारे लोग जीबी से आके काम करते हैं. कोविड के बाद वापस ही नहीं गए, वहीं रह गए. अब उनके पास जॉब्स नहीं है क्योंकि कोविड 2 साल के लिए था. तो उसके बाद दे गॉट यूज्ड टू वर्किंग रिमोटली, दे एडजस्टेड टू देयर लाइफस्टाइल. फिर वो इस्लामाबाद कंपनी ने वो रिमोट अपॉर्चुनिटी पुल आउट कर ली. अब या तो दे गो बैक और दे स्टे देयर एंड डू व्हाट दे आर डूइंग. हाफ ऑफ देम वेंट बैक, हाफ ऑफ देम कुड नॉट गो बैक. सो देयर वाज अ लॉट ऑफ रिसोर्स देयर दैट वाज, they had nowhere to go. When we went there, we saw this and we said, okay, let's open up an office there. Trailblazers, first one, systems में नहीं पहुंचा अभी तक वहाँ पे, ठीक है, 5 लोग हमने वहाँ पे हायर कर लिए. It's an opportunity, it's a risk also. It could work, it could fail, but that's what I'm saying, right? कि जो है उस जगह जाएं, highlight industries where your competition is weak or is absent. वहाँ जाएं, आपको वो होता है ना first market, क्या कहते हैं उसको, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, एग्जैक्टली, राइट? सो वो आपको मिलेगा जब आप सब डेटा कलेक्ट कर लेंगे, राइट? व्हाट इज द नेक्स्ट इनसाइट हमारे लिए क्या थी? सर्विस इनोवेशन, इंट्रोड्यूस सर्विसेज बेस्ड ऑन कॉम्पिटिटर्स सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी. आपने कंपटीशन को देखें, उसको देखें कि वो जो है वो हेल्थ केयर में या जो आपकी जो वो है उसमें क्या आपसे बेहतर कर रहा है, and then try to follow that. But that again, that competitor has to be somebody who's bigger and better than you, not somebody who's just like you. Has to be bigger and better, has proven themselves. See what they're doing, follow them. We do that all the time. There is no shame game here. We're all in the market to work. We do that all the time, right? And I know that people follow us and we follow people, and that's fine as long as you're growing with that and you're not cutting corners, right? Number 3, तीसरा इंसाइट, मार्केटिंग इंप्रूवमेंट, ऑप्टिमाइज कैंपेन्स बेस्ड ऑन कंपैटिटर्स सक्सेसफुल टैक्टिक्स. क्यों आपने पैसे खर्च करें? उन्होंने कर लिया ना, आप उन्हीं से सीख ले, वही चला लें. अपने क्यों करने खर्च? लेकिन सीखें, पढ़ें, रिसर्च करें, ठीक है? सच एज मोर एंगेजिंग केस स्टडीज और थॉट लीडरशिप कंटेंट. हमने ये सीखा है. दिस इज व्हाट, सो वी डोंट स्पेंड मनी ऑन गूगल एड्स, बाय द वे, वी डोंट डू एनी पेड मार्केटिंग. हमारा जो टैक्टिक है कस्टमर कन्वर्जन का वो ये है, इंगेजिंग केस स्टडीज़ और थॉट लीडरशिप कंटेंट, बिकॉज हमें इसी तरह का कस्टमर चाहिए. मुझे गूगल एड्स चला के एक वेबसाइट या एक लोगो नहीं बेचना, मुझे कस्टमर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चाहिए किसी अच्छी कंपनी की, ठीक है? सो फिर मैं बताती हूँ who we are as people through this, right? नेक्स्ट इनसाइट, पार्टनरशिप्स. अभी किसी ने कहा हम कोलैबोरेशंस पे बिलीव करते हैं. पार्टनरशिप्स, आइडेंटिफाई पोटेंशियल collaboration opportunities with niche players and collaborate in areas where you are not good at. You don't have to reinvent the wheel. If you find a good partner, collaborate. You don't always have to reinvent. Okay? Example, अब हमने पूरे को अप्लाई किया इस पूरे कंपैरिजन एनालिसिस को जेनेटिक के ऊपर.
हमारा डायरेक्ट कॉम्पिटिटर, अब हम आपको बता रहे हैं हमारा कौन है। डायरेक्ट कॉम्पिटिटर US बेस्ड कस्टम सॉफ्टवेयर हाउस स्पेशलाइजिंग इन हेल्थ केयर, हमने सिर्फ एक ही सेक्टर को उठाया अभी, वो हमारा डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है। हमारे पास उससे क्या इंसाइट आई, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन AI इंटीग्रेशन बट लैक प्रेजेंस इन साउथ एशिया। ये हमने जब स्टडी किया तो हमें ये इंसाइट आई। हमने क्या किया, highlight genetics cost advantage for North American clients and expand AI capabilities. तो ये मुझे solution मिल गया, actionable item मिल गया just through data. That is why data is so big today. It's so big today. तो आप जितने भी अपने spendings कर लें ना Google Ads पे इधर उधर, उस सब पे जाने से पहले ये सब करें. People try to cut corners and go straight for it. You have to do this. And being a startup, you don't have the kind of money to throw at Google Ads or at social media ads for that matter, right? If you're a small to medium business, good number is 3 to 5, जैसे मैंने अभी आपको बताया. Why? You can focus on direct competitors who serve the same audience and offer similar services and products. ठीक है? Ensure a manageable scope for detailed analysis while covering key market insights. So this is what I think that your competitor analysis should look like, and I feel that before you go and start spending on your marketings right now, you need to dive into this and give it a week or 15 days to just do these 3 exercises. ठीक है, market segmentation की. इसका template भी है, again download कर लीजिएगा, give them the link to the वो, I'll come to the Q&A. Give them the link to the वो slide deck, इसमें 3 templates हैं, ठीक है, उसको download कर दीजिएगा. And that's it. Thank you. जी बताएं सवाल. हाय थकी नहीं, जाएं, फॉरेन से नहीं जाना चाहिए. वेरी गुड क्वेश्चन. मेरा एक छोटा सा कंपटीटर बैठा हुआ है यहाँ पे. So what we do is when we started off, we were doing referral commissioning. सही है. So referral commission is also a model of marketing. मैं बताती हूँ. ये जो है साहब, ठीक है, इन्होंने मुझसे सर्विस ली, ठीक है, उनको मेरी सर्विस बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने मुझसे काम करा लिया, सही है. अब जिन्होंने मुझसे काम कराया उसकी एक्चुअली US में एजेंसी है, लेकिन वो डेवलपमेंट नहीं करते, लेकिन एजेंसी है उनके पास, उनका अपना नेटवर्क बहुत बड़ा है. तो मैंने उनसे कहा सर आपको ना आप मुझे कस्टमर ला के दें, मैं आपको 10% हर सेल्स पे दूंगी, ठीक है. दैट वर्क लाइक अ चार्म फॉर अस गिवन आवर प्लेसमेंट, राइट. जो हमारी प्लेसमेंट थी पिछले 5 सालों में, दैट्स वर्क लाइक अ चार्म फॉर अस. सही है. दूसरा एक मॉडल है जिस पे हम खुद काम करते हैं. अगेन दिस इज़ माई इंडस्ट्री, दिस इज़ माई कंपनी. इवन इंडस्ट्री वाइज सेम इंडस्ट्री में भी जो है वो सेम चीज़ काम नहीं करती, बट दैट वर्क फॉर अस. गोइंग to conferences, networking, meeting people, expanding your network works like wonders. Sometimes you feel कि यार इतना खर्चा करके, you know, it's a lot of expense by the way. अमेरिका में जाके इतने बड़ी कॉन्फ्रेंस में स्टॉल लेके, you know, but उसमें से आप 2 कस्टमर्स कन्वर्ट करेंगे ना, आपको स्टॉल छोड़ दें, आपके 3 साल का खर्चा निकल आएगा आपका, ठीक है. So that's what we did. What do we do now in the last 1.5 year, जिसमें हमने जो है अपनी लीड जनरेशन की टीम बनाई है. We do, अभी जो मैंने एक बात की थी, वैल्यू एडिशन. We write blogs, we write case studies, we write on platforms like Medium. सही है. वहाँ पे हम वहाँ पे लिखते हैं हम. LinkedIn पे बहुत बिल्कुल एब्सोल्युटली. Medium पे लिखते हैं हम फॉर पीपल, कोरा पे लिखते हैं हम LinkedIn पे लिखते हैं. सही. हमारे अपने ब्लॉग्स हैं, हम जो अपने ब्लॉग्स लिखते हैं तो फिर हम उसकी ईमेल मार्केटिंग ईमेल कैंपेन चलाते हैं टू पीपल. उसमें 3 महीने में 3 दफ़ा ऐसे ब्लॉग्स होते हैं जो वैल्यू एडिशन होते हैं, और 2 दफ़ा ऐसे ब्लॉग्स होते हैं जो हमारी सर्विस को प्रमोट कर रहे होते हैं. फिर उसकी रीटारगेटिंग करते हैं, ठीक है. So I still don't do Google ads. This just doesn't work for me. I've never done it. I've never done social media marketing. I've never put out an ad on LinkedIn also. Never. हाँ, it worked for me. It might work for you. It might not work for you. Instagram आपका चैनल है, मेरा नहीं है.
मेरे लिए इंस्टाग्राम किस लिए काम का है, वहाँ पे हम ये बताते हैं कि हमारी कंपनी में वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है, हमारी कंपनी में लोग कैसे काम करते हैं. दैट्स ऑल वी पुट ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज हमारा दूसरा ऑडियंस जो है वो लोग हैं जो जॉब ढूंढ रहे हैं, तो वो जाते हैं इंस्टाग्राम पे, वो जाते हैं फेसबुक पे, तो हम उनके लिए वहाँ डालते हैं. लिंक्डइन हम डालते हैं जब हमें कस्टमर चाहिए होता है, तो हम वहाँ डालते हैं LinkedIn. ठीक है जी. जैसे आपने कहा कि जो होम बेस्ड बिजनेस कर रहे हैं तो उनको 3 to 5 भी अगर मिल जाए कस्टमर, मतलब कोई ऐसा, तो वो उनके लिए काफ़ी. लेकिन जैसे अब मैं सेल्फ एक होम बेस्ड एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं जो है वो क्राफ्ट किया हुआ काम कर रही हूँ. तो जब मैंने स्टार्ट किया तब बहुत ही बहुत कम थे मेरे जो कॉम्पिटिटर्स. अब मेरा प्रॉब्लम ये है कि जो प्रोडक्ट मेरी है इटसेल्फ, उसमें मसला ये कि बाज़ जैसे मैं टोटली रिसर्च वर्क पे काम कर रही हूँ. मैं कोर्सेज में नहीं किए, क्योंकि मेरा मकसद ये था कि मैं ऐसी चीज़ बनाऊँ कि जिसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो. ठीक है. ठीक है, क्वांटिटी वाले तो बहुत बैठे हैं और अब वो बिल्कुल कमर्शियल लेवल पे आ गए, कमर्शियल बेच रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, और तो भी उनकी प्राइसेस हाई है. ठीक है. कमर्शियल कर रहे हैं तो भी प्राइसेस हैं. अब मेरे काम में ये ऐसा होता है, या तो DIY पे सब उतर जाते हैं और DIY से वो प्रोडक्ट बना लेते हैं. ठीक है. और उसके बावजूद भी वो लोग, अब सोशल मीडिया मार्केटिंग इज लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो अब अगर कोई मेरी मॉडल है, I'm gonna stop you there. सही है. तो दो चीज़ें, मैंने जो 3 to 5 competitors बताए थे ना, वो बताए थे जो you have to be very very smart to identify who those competitors are. And I'll tell you one, जो आपकी बातों से मुझे नजर आया. I'll tell you one competitor जो आपका है, वो है जो आपसे, आप जितनी क्वालिटी नहीं देता लेकिन आपसे ज़्यादा बेचता है, आपसे महंगा बेचता है. Go see what they are doing. Go see what their marketing is. ये सारे टूल्स यूज़ करें उनकी. ये आपका one of your competitors that you need to dissect. करते क्या हैं, कैसे करते हैं, ठीक है. बट आई वुड, सो इट डिपेंड्स. देखें, डिपेंड्स ऑन मार्केट टू मार्केट. मेरी मार्केट में इस तरह की सेगमेंटेशन है कि ऐसे लोग हैं जो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करके और पैसे पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और ऐसे लोग हैं जो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, पैसे पे कर लेंगे. राइट. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टाइम पे कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं. सो वी हैव यूजुअली वी हैव अ ट्रायंगल, क्वालिटी वर्सेस कॉस्ट वर्सेस टाइम. आई डोंट नो इफ यू गाइस नो अबाउट दैट. राइट. तो आप कहते हैं इसमें से कोई दो चीज़ चूज़ कर लो, क्वालिटी एंड टाइम चूज़ कर लो, कॉस्ट मेरी होगी. क्वालिटी एंड कॉस्ट चूज़ कर लो, टाइम मेरा होगा. कॉस्ट एंड टाइम चूज़ कर लो, क्वालिटी फिर मैं कम कर दूंगी, क्योंकि आपने कॉस्ट भी कम करा दी, टाइम भी जल्दी चाहिए, तो क्वालिटी भी मैं कम कर दूंगी. सो इट्स QCT का ट्रायंगल होता है. सही है. तो वो हमारी इंडस्ट्री में चलता है. फॉर अ होम ग्रोन इंडस्ट्री, योर कॉम्पिटिटर इज़ दैट पर्सन जो आपके जैसा प्रोडक्ट लो क्वालिटी बना के दे रहा है और पैसे आपसे ज़्यादा ले रहे हैं. what are they doing right? So I'll give you an example again. I know this lady who does silver ornaments, jewelry, right? और उससे कहीं ज़्यादा बेचती हैं दूसरी ख़वातीन जो उसी कॉपी बनाती हैं और सिल्वर भी नहीं होता और मिक्स्ड होता है, मिक्स मेटल होता है, और बेच रही होती हैं. सही है. बट वो लोग क्या कर रही होती हैं, वो कॉस्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रही होती है. ये चीज़, जो चीज़ 12,000 की दे रही होगी, वो 6,000 में दे देंगी. शी कांट अफोर्ड इट बिकॉज दिस इज़ प्योर सिल्वर. राइट. वहाँ पे लेकिन तो शी फाउंड आउट दैट कि ये लोग कैसे मेरी 12,000 की चीज़ 6,000 में कैसे दे रहे हैं. तो वो शी फाउंड आउट दैट दे वर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी. अगर आप ये कह रहे हैं कि क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और रेट भी लो है, so then you need to dissect that customer. That's your competitor. Dissect it. ठीक है. Use these tools. और भी tools are out there. Time constraint है, हम इन 3 tools पे काम कर रहे हैं. सही है. And then who are you as a business? That's very very important. जो अभी शुरू में हमने डिफाइन किया ना, who are you? Who do you want to serve? ये बहुत important है. ठीक है. तो मैं अगर होम ग्रोन होती तो मुझे नहीं पता क्या करती, बट जहाँ मैं खड़ी हूँ, जो हूँ मैं हूँ, आई डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन. डिड समबडी से? आई डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन. अगर कोई वहाँ पे ऐसा खड़ा है जो मुझे जानता है तो उनसे कहेगा कि मुझे नज़र नहीं आता अच्छे से, मुझे नहीं पता वहाँ कौन खड़ा है. आई डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी. सो फिर इसलिए हमारा क्लाइंटेल पीस ऑफ द पाई बहुत छोटा है, बट आई एम हैप्पी विद दैट बिकॉज दे गिविंग मी द रेट दैट आई एम आस्किंग फॉर. That's it, right? जब मैंने स्टार्ट किया तो सब यही कह रहे थे कि ये आपकी प्राइसेस, जैसे उस टाइम पे भी मेरी प्राइस सबको हाई लगी, लेकिन बहुत dissect that competitor. सही है जी. थोड़ा पहले भी पूछ चुका हूँ, जो मैंने कहा हमारी मार्केट के अंदर डेटा बहुत मतलब सही मौजूद नहीं है.
आपकी मार्केट के अंदर आपने बताया डेटा बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, लेकिन वो अवेलेबल है, लेकिन जो हिजाब की मार्केट है वो क्या बात कर दी, क्या बात कर रहे हो। मैं खुद हिजाब करती हूँ, मैं 10 दफ़ा देख के लेती हूँ, मैंने लेना कहाँ से। आपकी बात ही है। अभी मैं मार्केट रिसर्च से रिलेटेड बात कर मैं मार्केट रिसर्च ही करती हूँ ना भाई। रिसर्च सेंटर के डेटा के मुताबिक हम लोगों ने जो डेटा निकाला वो बहुत डिफरेंट जा रहा है। हमारी ऑडियंस भी थोड़ी डिफरेंट प्ले करेगी। अच्छा, अभी ना मैंने आपको टेम्पलेट्स दिए, ठीक है, और अभी हमने 3 सेगमेंट 3 एरियाज पे बात की, ये उस पर रख के देखें, फिर कोई सवाल हो ना डायरेक्टली पूछिएगा मुझसे। क्योंकि आप स्टॉल यूज़ करके इसमें आपको बहुत ज़्यादा कंपटीटर्स मिलेंगे। हम लोगों ने हमारी जो यूएसपी हम निकाब बेस हिजाब स्टाइल ज़्यादा सेल करते हैं और उसकी मार्केट हमें बहुत बड़ी दिख रही है, उसका डेटा हमारे पास आएगा। मतलब क्योंकि वेबसाइट्स नहीं है जो निकाब बेस्ड वेबसाइट्स नहीं होती हैं जो ऑनलाइन बेच रही हो। हमारा एक्सपर्टीज है उसके अंदर, आपकी एक्सपर्टीज है ना उसके अंदर, तो आपका कॉम्पिटिटर भी उसी के अंदर होगा। इतने स्ट्रॉन्ग कंपटीटर्स कोई नहीं, बहुत छोटे छोटे कंपटीटर्स हैं, बड़े कंपटीटर्स मौजूद नहीं है। और जो स्टॉल्स वाली मार्केट है वो हर कोई कम्पीट कर रहा है, लड़ रहे हैं, सस्ता प्राइसिंग। आपको मार्केट में जाने के बेचारे हमारी निकाब बेस्ड जो मार्केट है, इवन प्यू रिसर्च सेंटर होता है, वो डेटा बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। So you are saying that in the niqab based market you are the highest company out there in Pakistan, in Pakistan or in the world, in Pakistan or in the world. What's your next competitor? जो आपने ग्लोबल जाना है ना, आप ग्लोबल मार्केट चेक करें ना। फिर पाकिस्तान में तो आपने यू हैव टैप्ड इट ना, आप कह रहे हैं कि हम जो है वो अब ग्लोबल जाना चाहते हैं। ग्लोबल नहीं जाना चाह रहे हैं, जब हम पाकिस्तान में उसे स्केल करना चाह रहे हैं, वहाँ पर डेटा अवेलेबल नहीं है एंड कि हम उसको कितना स्केल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, एक है प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक 22% स्टॉल्स यूज़ करती है और 32% वो वाले हिजाब निकाब यूज़ करती है जिनमें निकाब बहुत कंपलसरी टाइप होता है। Have you sort of like found out all the websites or businesses in Pakistan that sell hijab? Don't say niqab, sell hijab. या 50+ से ऊपर तो मैं जानता है ना, उसमें से कितनी ऐसी हैं जो निकाब भी बेचती होंगी साथ में? ऑलमोस्ट एवरीबडी। हूँ। एक सिंपल निकाब तो बेचती है, लेकिन हमारे पास जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट डिज़ाइन है ना वो जिस तरह के निकाब की आप बात करें, फिर तो पाकिस्तान में उसकी मार्केट भी नहीं है ना, इतनी बड़ी मार्केट नहीं है ना। अकॉर्डिंग टू रिसर्च डेटा वो है, लेकिन हमें वो डेटा, वही बात है, हम उस डेटा तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। हम कस्टमर से भी ज़्यादा उस टाइप के कस्टमर तक नहीं पहुंच पा रहे जो निकाब स्टाइल हो। अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग की बात करते हैं, दीज आर द मॉडल्स दैट वी यूज़ एंड दैट, या तो फिर ये है कि आपका वो कस्टमर वेब पे है ही नहीं, वो यूज़ ही नहीं करता, आपके पास वो डेटा वहाँ है ही नहीं, दिस विल नॉट अप्लाई टू दैट। आपको थोड़ा सा कंपटीटर्स में कहीं हमारा 70% जो अभी हम लोग 8 करोड़ की सेल्स अलहमदुलिल्लाह कर चुके हैं, उसमें 70% हमारा वो हिजाब है जिनमें निकाब सही है। तो अब कोई भी कंपटीटर हमें इस लेवल पे प्ले करते हुए नहीं दिख रहा और हम लोग चाह रहे हैं कि हम उसी नीच में ज़्यादा स्ट्रॉन्गली प्ले करें, क्योंकि डेटा। But you're already doing it, na? But you're already beating your competitors. You can, what you can do is you can build in your more capacity to sell better, because जो भी marketing model आप use कर रहे हैं has worked. Why do you want to change it? But if you want to go global, then you have to use this data, this pattern. if I want to scale, मतलब मैं ये सोच रहा हूँ 8 करोड़ Capacity building करें। देखें, मतलब मैं आपसे जो क्वेश्चन मेनली ये है ना कि अभी 8 करोड़ तो सही है और ये कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है 8 करोड़, सही है। अगर हम लोग प्लानिंग आगे कर रहे हैं 200 करोड़ की, इतनी बड़ी मार्केट एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, डेटा नहीं मिल रहा। उसका डेटा नहीं मिल रहा आपको, तो मुझे नहीं पता करती नहीं करती है, लेकिन मुझे नहीं लगता करती होगी पाकिस्तान में। सऊदी अरब में करेगी शायद, पाकिस्तान में नहीं करेगी। अभी हमें जो एक बहुत वेल नोन रिसर्च सेंटर है यूएस का, प्यू रिसर्च सेंटर, उसने सारी कंट्रीज़ के एड्रेसिंग उस पर निकाला है। पाकिस्तान में उसने कहा है कि जो हिजाब करने वाली है सिंपल स्टोर है वो 22% है, लेकिन निकाब स्टाइल हिजाब करने वाली जो है वो 32%, बड़ा मार्केट है। हिजाब वालों में जो निकाब करने वाली हैं वो 32% है। सो दैट्स आउट ऑफ हिजाब, राइट। जो हिजाब करती हैं वो 22% है, उसमें से जो निकाब करती हैं, मतलब जो मदरसा स्टाइल उन्होंने कैटेगराइज किया, जो मदरसा स्टाइल वो करने वाली है ना वो 32%, मतलब उनके डेटा के मुताबिक ये बड़ा है। भाई अगर डेटा जो है ना नहीं होगा तो मुझे नहीं पता और कहाँ से मिलेगा, बट यू कैन ऑल्सो कंडक्ट सर्वेज टू कलेक्ट, देन यू हैव टू कलेक्ट डेटा मैनुअली। यू कैन नॉट
जैसे अगर मुझे डेटा चाहिए तो मुझे डेटा सेट्स मिल जाते, देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म जिससे मुझे डेटा सेट मिल जाते हैं. आपका डेटा अगर, बिकॉज दिस इज सो स्पेसिफिक, such a specific market, then you have to run surveys and basically collect data to do that. जी. लेकिन एक अगर कोई टेक्निकल जाए, अब इसमें एक और हमें जो चैलेंज आ रहा है ना कि ये जो ऑडियंस है उससे हम कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहे. let me we'll do a one on one. ठीक है. I think नहीं, पहले हम सवाल आगे जवाब. मैं हूँ भाई, मैं 5:30 तक चले जाऊँगा, बस 15 मिनट और हैं. जी. मेरा क्वेश्चन ये था, ऐसे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जिसके कस्टमर को मे बी टेक्निकल नॉलेज ना हो, जैसे कि आईटी से रिलेटेड, उसको ये सोल्यूशन चाहिए, अब बैक एंड पे आप कैसे करके दें वो कंसर्न नहीं, तो उसमें हाउ वुड यू रिफ्लेक्ट क्वालिटी इन दैट टू द कस्टमर? आप इससे पूछें. गुड क्वेश्चन. ऐसे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जिसमें टेक्निकल नॉलेज कस्टमर को नहीं होती, जैसे आईटी बेस है, ठीक है. हम किस तरह से रिफ्लेक्ट करेंगे क्वालिटी कस्टमर को कि हाँ यार हम क्वालिटी दे रहे हैं, बाकी नहीं दे रहे. सो आई टॉक अबाउट माई सेल्फ. ओके. और ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं जो 70 to 80% ऑफ कस्टमर्स आर नॉट टेक सेवी. ठीक है. नॉट दैट बैड जो भी मैंने भी आप लोगों को बताई, पर क्योंकि डिफरेंट इंडस्ट्री से लोग आते हैं, दे डोंट केयर. वी हैव डॉक्टर्स, लॉयर्स, they're not tech savvy, they don't care, right? So when you go to them, I'll tell you the first meeting we do with them, we'll ask them what do you want, they'll tell you this is what we want, right? And then in that conversation you will say अच्छा तो इसमें ये भी होना चाहिए, right? You know, so you give them ideas that you want them to talk about, then you ask them their benchmark, ठीक है? Then you ask them their competitor, right? And then you tell them okay, I'm going to come back to you. And then you go and do your research for their competition and their benchmark. And then you bring a solution to them and then you explain to them what the solution normally stands for, right? हमारा यहाँ ये होता है कि when I'm giving you a solution, I'm writing it down for you, right? मैंने आपसे कहा है कि आपको, say you are my client. We'll do this, this will help in this way, this will help in this way, this will help in this way, right? You will say, okay, I don't need 2 of these, I need 3 of these. For example, अक्सर customers because cost cutting कर रहे होते हैं, वो कहते हैं we don't need this, we need this. Okay, fine. We do that with the disclaimer कि if you don't do 2 of these, this is what you're lagging. But if you do 3 of these, this is what's good. Now, value addition ये है कि that's what we do. So if you come back to me 3 years later and you become more tech savvy and say, oh, आपने तो ये कहा था तो ये तो आपने किया ही नहीं. तो ये it's on me to say कि ये मैंने किया है. This is where this is, right? So हमारे पास एक rule of thumb है. हमारे पास rule of thumb ये है कि whenever we do custom software development, we say there's a 3 months UAT period. So कहते हैं user acceptance testing period. सही है? And companies close it after 3 months. And say कि अच्छा इसके बाद अगर आपके पास कोई issue आता है ना, तो फिर आप जो है ना वो maintenance ले हमारी. That's a standard in company in software development. हमने उनसे कहा हुआ है कि जी UAT पीरियड 3 महीने का है, उसके बाद आपको कोई भी चेंज कराना है, कोई आपको अपग्रेड करना है, आप मेंटेनेंस लें. लेकिन अगर बग आ गया तो वो जब तक आप ये सॉफ्टवेयर यूज़ करें, अगर बग आ गया वो हमारा है. सो दैट्स द एश्योरेंस दैट यू नीड टू पुट आउट देयर. एंड ऐसा हुआ है, यहाँ पर 2-2 साल के बाद कस्टमर्स आते हैं कहते हैं बग आ गया. व्हाट डू वी चेक? सॉफ्टवेयर डेप्रिकेट तो नहीं होगा, कोई स्पेसिफिक फंक्शन अगर डेप्रिकेट हो गया, that's not my issue because वो डेप्रिकेट हो गया. बट अगर वो जेन्युइन बग है, you we have to fix it and give it to them, tell them this is on the house because it's a bug. measuring tool for that how you measure the quality in terms of the सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की अपनी क्वालिटी के मैट्रिक्स में उनकी मतलब कस्टमर पर्सपेक्टिव से metrics as in number of times that they come, या maybe I don't know how occurrences की बात करें. देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, occurrences होती हैं, ठीक है, और ट्रेंड होता है. You also see trends. So if you see that the trend is like every 3rd or 4th week the customer is coming back with something new, then you sort of like say, okay, you are gonna like fade it out a little bit, you know. But if you also see that, yeah, this is a very, very cranky customer, but he has work. So now, and हमारे पास 10 में से 3 कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो बहुत क्रैंकी होते हैं, या तो डॉक्टर होता है या वो लॉयर होता है, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा भी उन्हीं के पास है और काम भी उन्हीं के पास होता है. सो यू सॉर्ट ऑफ लाइक से कि हाँ ठीक है यार, उसको मैनेज करेंगे, राइट. सो देयर इज नो सॉस दैट आई कैन गिव यू.
this is a very people's thing. When you meet people and then हमारे यहाँ एक saying है कि हमारी कंपनी में तो कोई आता है हम कहते हैं this is another Steve guys, be careful because there was one Steve with us who's been with us for a decade. We'll say this is another Steve guys, so they'll know अच्छा this is what we need to expect, right? So that's our matrix in house, right? So and this comes with years of experience, right? Anything else? जी. आपने जो नॉर्थ अमेरिका में एक्सपेंड किया वहाँ की मार्केट में एक्सपेंड करने का आपको कितना टाइम लगा और मतलब कैसे अगर मैं अपना सॉफ्टवेयर और मतलब वहाँ पे कैसे कॉम्पिटिटिवनेस है या इसका जवाब मैं नहीं दूंगी, ये देगा. हेलो, सवाल पूछ रहा है, कुछ जवाब दो. पूछो. अगर जैसे मैं सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू करता हूँ सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड करें और मुझे नॉर्थ अमेरिका में एक्सपेंड करना है और ग्लोबली एक्सपेंड करना है कैसे मार्केट अगर मैं क्वालिटी कैसे करेंगे? अगर किसी फॉरगेट नॉर्थ अमेरिका, किसी नई मार्केट में जाना है तो कैसे करेंगे? अगर आप ये यहाँ काम कर रहे हैं, उनको किसी नई मार्केट में जाना है तो कैसे करेंगे? आपने क्या किया, कैसे करेंगे? आपने देखिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म होगा लिंक्डइन है, ठीक है. थोड़ा सा पैसा लगाया तो प्रीमियम मिल जाता है, ठीक है. प्रीमियम यूजर बन के जब आप अप्रोच करते हैं उस मार्केट के बिजनेस ओनर्स को, ठीक है, या फिर ऐसे जो कि एंटरप्रेन्योर की टाइटल के साथ, ठीक है, उनके पास कुछ आइडियाज होते हैं, ठीक है ना, तो आप उनको डायरेक्टली कनेक्ट करें. आपका अपना कंटेंट जो पोस्ट होगा उस तरह का ओरिएंटेड होना चाहिए कि उनको थोड़ा अट्रैक्शन दे, ठीक है. सो इस तरह से आप दिस इज द चीपेस्ट वे टू गो टुवर्ड्स अप्रोचिंग एनी मार्केट जहाँ पे आपकी रीच ना हो. वरना बेस्ट तो ये है कि आप बूट्स ऑन द ग्राउंड जिस मार्केट को टैप करना है वहाँ से अप्लाई करेगा, ठीक है. लेकिन ये इसके लिए पैसा लेकिन सबसे ईजीएस्ट है वाया लिंक्डइन और मीडियम वगैरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं प्लेटफॉर्म्स. There's also another platform called Alignable. It's a very good platform. Needs a lot of effort, but if you crack it, you crack it. The North American market में small and medium businesses, and people will not tell you about Alignable because Alignable एक तो पाकिस्तान में चलता नहीं है, so आपको VPN इस्तेमाल करना पड़ता है guys to use Alignable.com. सही है. So and this is not just for tech, by the way. This is for everything. Anybody wanting to do global expansion to small and medium businesses internationally, except for Hijab. वो Alignable use करें, Alignable.com, लेकिन VPN करके करें, because पाकिस्तान को ब्लॉक कर देते हैं. हमें 2 दफ़ा कर चुके हैं, इसलिए अब हम जो या तो US में मैं होती हूँ तब करते हैं या कनाडा में होती हूँ तब करते हैं, और यहाँ से करते हैं तो वो US का VPN यूज़ करके करते हैं. तो बिकॉज आई हैव अ टीम, बिकॉज उसमें इसी तरह का बिल्कुल लिंक्डइन टाइप का अप्रोच है, बट इट्स अ टोटली डिफरेंट ऑडियंस, बट इट्स गुड. वहाँ पे आपको, बिकॉज वहाँ पे लो पेइंग जो है ना कस्टमर्स होते हैं, बिकॉज वो स्मॉल काफ़ी माइक्रो और स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, बट दे ऑल्सो नॉट वेरी टेक savvy. तो होता ये है कि फिर यू टेल देम सोल्यूशंस, बट इसी तरीके से आप खुद को प्रमोट करते हैं, बिकॉज देयर Facebook टाइप की वहाँ पे वो होते हैं, you put out post and people answer, and then so like I said, I ran this survey, WordPress versus Wix versus Webflow was an Alignable only, and I got such good responses. I was like, wow. So it's good. It's a new it's not a new platform. It actually has 10 million businesses on it in the US market, in US and Canada, but we just don't know about it. I just stumbled on it last year, and I was like, I don't know what this is, but let's check it out. But it's really good, especially for micro and small businesses. ठीक है जी. सर आपने कहा कि AI से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, प्रॉपर डेटा ले सकते हैं मार्केट के हवाले से. उसके अलावा कोई और चीज़ होगी गूगल के अलावा कोई ऐसी वेबसाइट या उसका कोई प्लेटफॉर्म जहाँ आप एक्यूरेट डेटा ले सकें अपनी मार्केट रिसर्च के लिए, जैसे अभी मैंने बताया था क्रंचबेस, और हम लोग यूज़ करते हैं लिंक्डइन नेविगेटर. So when you become LinkedIn Premium, I think Navigator comes with it, right? अलग से लेना पड़ता है, पता नहीं, हमारे पास है, मुझे पता नहीं है. So LinkedIn Navigator अलग से लेते हैं. Then there is this other local company, it's called Linked Camp. सही है. उसको हम यूज़ करते हैं for mapping. So for instance, if I go to LinkedIn and I go to Navigator and I say, this is the list of businesses, say 5,000 businesses in the US.
in this specific industry that I want to cater, जिसका revenue यहाँ से यहाँ तक है. Then I'm going to do an email marketing campaign with them, right? I'm going to sell this specific service to them. सही है? तो मैं उनका डेटा रिव्यू करने के लिए नेविगेटर पे जाती हूँ कि इसका अपना जो है वैल्यूएशन क्या है इस कंपनी की, ठीक है, लोग कितने हैं, वैल्यूएशन क्या है, CXO कौन है, किसको मुझे टारगेट करना है, डायरेक्टर कौन है, मार्केटिंग में कौन है, जो भी जहाँ भी मुझे टारगेट करना है, सही वो मुझे वहाँ से मिल जाता है. फिर मैं लिंक्डकैम्प यूज़ करती हूँ. ऐसे और भी टूल्स हैं, द मोर टूल्स आउट देयर. आई यूज़ लिंक्डकैम्प, इट्स लाहौर बेस्ड कंपनी, नॉट वेरी एक्सपेंसिव, दे गुड. एंड आई यूज़ देम टू बेसिकली से कि ठीक है ये कैंपेन चलानी है, और वो लिंक्डइन कैंपेन, बाय द वे दैट्स नॉट एन ईमेल मार्केटिंग, दैट्स अ लिंक्डइन कैंपेन, कि ठीक है रीच आउट टू दिस पीपल, इफ़ दे डोंट आंसर यू इन 3 days, उनकी पोस्ट पे जाके एक लाइक कर लो, कोई एंगेजमेंट क्रिएट कर लो, ठीक है, सो दैट यू फिर से आप उनके सामने आ जाओ. 2-3 दिन के बाद फिर ये कर लो. अगर वो ये करते हैं तो इसका बेसिकली क्रिएट्स ए टोटल रोड मैप हाउ टू गेट दैट पर्सन ऑन बोर्ड, राइट. सो अगर आप से 1500 करते हैं तो आई एम श्योर 100 लोग आ जाते हैं आपके लिंक्डइन पे, एंड देन यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट व्हेन दे कम ऑन योर लिंक्डइन, व्हेन यू कनेक्टेड विद देम, देन यू कैन स्टार्ट द ईमेल मार्केटिंग कैंपेन. वो अलग होती है, बट जस्ट टू ब्रिंग देम टू योर लिंक्डइन. सो इस तरह की चीज़ें होती हैं और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स भी हैं. डिपेंडिंग ऑन योर मार्केट एंड योर इंडस्ट्री इट माइट बी डिफरेंट. फॉर मी दिस इज़ व्हाट इट इज़. मैं तो कोरा यूज़ ही नहीं किया. मैं तो ये जो लास्ट सर्वे किया, मैं बताया, मैं अलाइनेबल पे किया. 10 मिलियन लोग थे, अलाइनेबल पे किया मैंने, अलाइनेबल पे किया. इट्स नॉट अ सर्वे टूल, इट्स जस्ट ए survey. I don't think that I know. There might be, somebody might know, but what we do is to run surveys. We can use SurveyMonkey and the likes of it. To collect data, we can use platforms like Crunchbase, Navigator, उस तरह के platforms हम use करते हैं. There might be something जहाँ पे डेटा ऐसे रखा हो, मुझे नहीं पता आज तक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपने कहा डेटा ऐसे रखा तुम्हारे लिए, बेटा आओ ले जाओ, ऐसा नहीं होता. तो बनाए ना उसको. Does anybody know anything like that? कि मतलब ये कह रहे हैं कि इनका अपना नेटवर्क नहीं है, इनके पास 10,000 फॉलोवर्स नहीं है, ठीक है. सो फिर इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, आप इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू काम करते हैं कि जी अगर आपके पास एक सर्वे है, अगर मैं होती, मेरे पास एक चीज़ मुझे चलानी है, सर्वे चलाना है, तो आई वुड रीच आउट टू एन इन्फ्लुएंसर से कि यार तुम्हारी 1 मिलियन की फॉलोइंग है, ज़रा ये सर्वे चला दें, मुझे रिजल्ट्स दे दें, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं, अगर मुझे इंडस्ट्री में कोई सर्वे चलाना है, लोकली कोई स्किल इंट्रोड्यूस करनी है, ठीक है, तो देखना है टॉप 5 स्किल्स कौन सी हैं. तो मैं जाती हूँ पाशा के पास जो है वो कितना बंदा है, 5,000. कहती हूँ यार ये इंडस्ट्री में चला दें, ठीक है. PCEP के पास 10,000, ये चला दें. वो डेटा सेट कहाँ से मिलेगा वो आपको देखना होगा, एंड दैट ऑब्वियसली इज़ नॉट समथिंग दैट इज़. हाँ, अगर आप खुद से चलाना चाहते हैं कि जी 10,000 लोगों को चला दें और डेटा सेट चाहिए मुझे, तो देयर आर ऑल्सो वेबसाइट्स दैट सेल दैट डेटा सेट, ख़रीद लें. बट उसमें फिर कितना वैलिड है यू डोंट नो, राइट. चलें ठीक है. एनीथिंग एल्स जी. So you have to sort of like cut it down, ना. You have to write the right. जैसे अगर मैंने तो अपने, so there are formulas जो मैंने अभी बताया था कि template भी है, and then you can also use AI to do that, right? So you have to write the right prompt. नहीं, ऐसा नहीं होता. I don't know. हो सकता है हो. I don't know. And I've been doing business development for. मैं मेरे दोस्त को यूज़ करता हूँ, उसका नाम है Byte. So that's an AI bot. It's a paid bot. It's not a free bot. Works good. It's not accurate, but pretty close. It's realistic. No, मेरे bot का नाम Byte है. मैं उसको Byte कहती हूँ. It's I use ChatGPT 4.0 इस वक्त जो आया हुआ है, उसका एक और नया वो आया हुआ है.
उसका दिस इज़ अ पेड थिंग, तो कर लें आप, वो यूज़ कर लें। और भी बहुत सारे हैं। नहीं, और प्रॉम्प्ट हैज़ टू बी राइट ना, एंड द more natural language that you use, I think NLP has become a hawa, but it is the least hawa that I feel that it is. The more natural language that you use with a bot, the better response you get with the bot. The more you try to say कि नहीं, I have to be accurate, I have to be really on spot, it doesn't work like that. That's what I've seen, and it works for me. सही है? चले जी, thank you so much, thank you for your time.